آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ نفلی صدقے کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدے ہیں، اور زکوٰۃ کتنا بڑا اسلامی فریضہ ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس قائم ہوتی تھی، آپ صحابہ کرام کو کوئی نواز و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ترتیب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو خالی جگہ ہیں اسے پر کر کے بالکل ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں اور ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرح اپنی مجلس کو بنائیں۔ تو محترم سامعین کرام، تو آج میں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی بات، نفلی صدقہ جو ہم پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیتے ہیں اللہ کی راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال و دولت میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ، جو اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، جو غریبوں اور مسکینوں کا ہی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال دی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، جس ایک دانے سے زمین کے اندر سے 7 والیاں ہوگی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر والی کے اندر 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا ہی بہترین دی۔ جس طرح ایک کسان زمین پر دانہ بوتا ہے اور اس ایک دانے سے 7 والیاں نکلتی ہیں، اور اس 7 والیوں کے اندر ہر والی کے اندر 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے 700 روپیہ عطا فرما دیتا ہے، 700 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور 700 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو کشادگی والا ہے، 700 سے بڑھا کر جسے چاہتا ہے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو صحیح، خلوص دل سے خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، ریاکاری اور نمود کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کہ ایک خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں 700 عطا فرمائے گا۔ 700 کے برابر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا، 700 نیکیاں عطا فرما دے گا، اور اس سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور
खर्च भी हम करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई भी नेक काम, कोई भी दीन का काम जब हम करें तो उससे मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया वाले राज़ी हो ना हो कोई हर्ज नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और वही सदका, वही खैरात कामयाब है। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, व आतवुज़्ज़काता, और जो हमने उनको माल दिया है उसमें से, व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको माल दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं, कभी कोई घाटा नहीं। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, ये इसलिए है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे। वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से जिसको चाहे बढ़ा दे। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और हमारे आमाल की बड़ी कद्र करने वाला है। तो इस आयत से भी मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये ऐसी तिजारत है, ये हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करके ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें कभी नुकसान नहीं। हम दुनिया की तिजारत करते हैं, दुनिया में बिजनेस करते हैं, इसमें चांस होता है कि हमारे बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, फायदा नुकसान दोनों का चांस रहता है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद नुकसान की तो कोई उम्मीद ही नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा है, कभी नुकसान ही नहीं होगा। तो क्यों ना हम ऐसी तिजारत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करें। अल्लाह ने दिया है, ये हमारा माल अल्लाह का अता किया हुआ है। हमारी क्या हैसियत है कि हम माल कमा सकें? हम तो इतने बेबस हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो एक लुकमा भी हम अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते। ये हमारी हैसियत है। ये अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की मंशा से ही हम माल जमा करते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, हम माल को इकट्ठा करते हैं, और फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से हम क्यों बचते हैं? सोचना चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ माल अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भी हमें फायदा देता। उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज्यादा बढ़ा करके देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी घाटा नहीं, इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रास्ते में वक्तन फवक्तन देते रहना चाहिए। ये हुआ नफली सदक़े के ताल्लुक से बातें। आइए ज़कात के ताल्लुक से देखते हैं। ज़कात, पहले ज़कात का मायना जान लेते हैं। ज़कात का मायना होता है पाकीज़गी और बढ़ोतरी, यानी ज़कात उस माल को कहा जाता है जिस माल को हम अपने माल में से निकाल करके हम अपने माल को पाक कर लेते हैं, बाकी का माल हमारा पाक हो जाता है, और जिस ज़कात को निकाल करके हमारे माल में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और ज़्यादा बरकत हो जाती है। इसका उल्टा ये हुआ कि अगर कोई शख्स अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में घाटा कर देता है, नुकसान पैदा कर देता है। अब वो अल्लाह ताला कैसे करे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि जो शख्स ज़कात नहीं निकालता है अल्लाह उसके माल में कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है, उसके खेती बाड़ी में पैदावार कम करके कर दे, या अल्लाह ताला कोई और नुकसान कर दे, किसी को बीमार करके सारी रकम उसके इलाज में उड़ जाए,
किसी तरह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ले सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है करता है, उसे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। तो माल निकाल करके हमारा बाकी माल पाक हो जाता है, और जो शख्स ज़कात नहीं निकालता उसका माल नापाक रहता है, गंदा रहता है सारा का सारा माल, और ऐसे माल में घाटा और नुकसान भी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों को जो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में अपने माल की ज़कात देते हैं, ऐसे लोगों को दीनी भाई कहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता, अगर वो लोग अपने बुरे अमाल से तौबा कर लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, वक़ामुस सलाता, नमाज के पाबंद हो जाएं, वातुज़ ज़काता, और अपने मालों की पूरी ज़कात देने लगे, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। ऐसे लोग हमारे इस्लामी भाई हैं, दीनी भाई हैं, जो नमाज के पाबंद हैं और ज़कात देते हैं। इसका उल्टा अगर निकालें तो ये होगा कि जो नमाज के पाबंद नहीं और ज़कात नहीं देते हैं वो हमारे दीनी भाई नहीं। इस्लामी भाई बनना है तो हमें नमाज का पाबंद होना पड़ेगा और अपने मालों की ज़कात देना पड़ेगी। और जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं, माल को रोके रखते हैं, उनका भी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में तो अल्लाह ताला चखाएगा ही, लेकिन आखिरत में बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। आइए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का क्या अंजाम, क्या अज़ाब बताया है, आइए देखते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा के अंदर, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी का खजाना जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उस सोने और चांदी की ज़कात अल्लाह के रास्ते में अदा नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, जिस दिन इस सोने और चांदी को क़यामत के दिन आखिरत में जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फतुकबा बिहा जिबाहुम, बस उस तपे हुए सोने और चांदी से उस शख्स के पेशानी को दागा जाएगा, वह जुनूबहुम, दोनों पहलुओं को भी दागा जाएगा, वह ज़ुहूर, उसकी पीठ को भी दागा जाएगा, और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही वो सोना चांदी है जिसको तुम दुनिया में जमा करके रखते थे, दुनिया में जिसकी ज़कात नहीं निकालते थे, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, लिहाजा जो तुम इस सोने और चांदी के ज़कात ना निकालने की वजह से इसका दर्दनाक अज़ाब चखो। जहन्नम की आग में वो सोना चांदी तपाया जाएगा, और जहन्नम की आग तो बड़ी सख्त आग है, बड़े भड़कती हुई आग है, और उससे दागा जाएगा जिस्म को, पीठ को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा, इतना सख्त अज़ाब। ये सोना चांदी जिसे हम जमा करके रखते हैं, 7.5 तोला सोना अगर हमारे पास है और हम एक साल गुजरने पर उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग खबरदार हो जाएं कि अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग में तपा करके और हमारे पीठ को, पेशानियों को दागेगा। और 52.5 तोला अगर चांदी हमारे पास है और एक साल गुजर गया और ज़कात नहीं देते हैं, तो सोच लें बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। और इसी तरह से 7.5 तोला सोना और 52.5 तोले चांदी के
برابر ہمارے پاس رقم ہے، روپیے ہیں، اور ان پر 1 سال گزر گیا تو اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں کی، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے دنیا کے اندر نوازا، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس مال کی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، مسل لہ یوم القیامت شجاعا، تو قیامت کے دن وہ مال اور دولت ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اقرا لہ زبیبتان، اس سانپ کی دونوں آنکھوں کے پاس 2 کالے نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامت، وہ آخرت میں وہ سانپ، وہ گنجا اور زہریلا سانپ انسان کے گلے کا ہار بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا، یاخذ بلحظمتیہ، دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی وہی میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور غریبوں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کا حق بھی کھا جاتا تھا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، آج انا کنزکا انا مالوکا، وہی تیرا مال ہوں، وہی تیرا خزانہ ہوں۔ یہ زہریلا سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور آپ سرچ کر کے دیکھیں جس سانپ کے آنکھوں کے پاس 2 نقطے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ اللہم حفظنا، اللہ ہم سب کو اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے مال کی پوری کی پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کس قدر جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور وہ چھوٹی سی بچی کو لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، جو عورتیں اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں پہنتی ہیں سونے کے کنگن، اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں، میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکالتی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سونے کے کنگنوں کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ بس اتنا سننا تھا۔ وہ عورت گھبرا گئی، جہنم کے عذاب سے ڈر گئی، اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے 2 سونے کے کنگن نکالے، زمین پر پھینک دیے اور کہنے لگی یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں انہیں خیرات کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ڈر تھا صحابہ اور صحابیات کے دل کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان کی زکوٰۃ نکالنے کی بات کہی تھی، لیکن وہ صحابیہ اتنا ڈر گئی جہنم سے کہ وہ کنگن ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے۔ اس قدر ڈر اور خوف جہنم کا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال جو زکوٰۃ کا مال ہے اس میں ہمارا ذرہ برابر بھی حق نہیں۔ یہ ٹوٹل مال غریبوں مسکینوں کا، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل بتائی ہے، وہاں وہاں یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال جو بنتا ہے
जिस हिसाब से वो पूरी की पूरी ज़कात जिनका जो हक़ है उन्हें दे दिया जाए, ये हमारा इसमें कोई हक़ नहीं। और ये एक बात याद रखो कि दुनिया के अंदर अगर कोई किसी का हक़ ले लेगा, कोई किसी का माल खा लेगा, तो कभी वो फलाह बहबूद नहीं पा सकता, कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में भी वो परेशान रहेगा, अल्लाह का अज़ाब उस पर ऐसा आएगा कि वो मायूसी का शिकार रहेगा, तंगदस्त रहेगा। भले ही मालो दौलत की तरफ से वो खुशहाल है, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह ताला उसकी परेशानी में मुब्तला कर देगा, कोई ना कोई अल्लाह ताला ऐसी मुसीबत दे देगा कि वो ज़िंदगी भर परेशान रहे। इसलिए ज़कात का माल ना रुका करो। ज़कात फ़ौरन के फ़ौरन माल आने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन उसे अदा कर दिया करो। खेती बाड़ी का माल है, गल्ला है, ये अल्लाह ताला ने हमें गल्ला अता फरमाया है, तो उसमें से भी गरीबों मिस्कीनों का हक़ है, उसे अल्लाह के रास्ते में फ़ौरन निकाल दिया करो, पूरा का पूरा उश्र। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तफसील भी फरमाई कि ज़कात कहाँ कहाँ दी जाएगी, किन किन लोगों को दी जाएगी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नमस सदक़ातु, ज़कात लिल फ़ुक़राई, ये फ़कीरों के लिए है, वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के लिए है। फ़कीर जो लोगों से सवाल करते हैं, मांगते हैं, वो फ़कीर होते हैं, और मिस्कीन जो गरीब तो हैं, कल्लाश तो हैं, लेकिन शर्म की वजह से सवाल नहीं करते हैं, बल्कि हमारी नज़र में है कि वो गरीब और कल्लाश हैं, तो उन तक वो ज़कात का माल पहुँचाया जाए। तो ज़कात लिल फ़ुक़राए, फ़कीरों के लिए, वल मसाकीनी, मिस्कीनों के लिए है, वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात का माल उन्हें भी दिया जाएगा जो ज़कात की वसूली करते हैं, अपना कामकाज छोड़कर लोगों से ज़कात का माल इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें भी उन लोगों को भी ज़कात में से कुछ हिस्सा दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह दी जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और ज़कात का माल उन्हें दिया जाएगा जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं, नए मुसलमान हुए हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज़कात का माल दिया जाएगा। व फिर रिकाब, और ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए, पुराने ज़माने में जो किसी की ग़ुलामी में रहते थे लोग, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए भी ज़कात का माल इस्तेमाल किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। वलगारिमीना, और कर्ज़दारों की कर्ज़ की अदायगी के लिए भी ज़कात का माल खर्च किया जाएगा। कोई ऐसा शख्स है जो अपना कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा है और उसे ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि ज़कात का माल देकर उसके कर्ज़ की अदायगी कराएं। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, यानी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ज़कात का माल खर्च किया जाएगा। और अल्लाह के रास्ते में से मुराद ऐसी जगह सवाब की नियत से जहाँ ज़रूरत है, वहाँ अल्लाह के रास्ते में हम अपने ज़कात के माल को खर्च करेंगे। ये वब्न सबील, और मुसाफिर के लिए भी, ऐसा मुसाफिर जिसके पास माल ख़त्म हो गया, अब आगे सफ़र करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात का माल दिया जाएगा। ये ज़कात के मसारिफ़ हैं, ये तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाई है। ऐसे लोगों को ज़कात दी जाएगी, इनके अलावा किसी को ज़कात नहीं दी जाएगी। ये मुस्तहिक लोग हैं, इन्हीं को ज़कात हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों तक ज़कात पहुँचाएँ। और एक बात याद रखें कि नफली सदका ये जो हम करते हैं, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन माल और दौलत में खैर व बरकत अता फरमाता है। अगर हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से, अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ सदका करते रहना चाहिए। और सदका करने के लिए सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को देखना चाहिए कि जो गरीब रिश्तेदार हैं उन्हें पहले सदका देना चाहिए, अगर वो लेने के हकदार हैं और लेना चाहते हैं। फिर दूसरे लोगों में सदका करना चाहिए, दूसरे लोगों को सदके का माल देना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि ज़कात ये तो इस्लाम का रुकन है, ये तो अदा करना ही करना है, लेकिन सदका ये हम अपने नेकियों में इजाफे के लिए अल्लाह के रास्ते में सदका भी कर सकते हैं। जो साहिब निसाब नहीं है,
جن کے پاس جو زکوٰۃ نکالنے کے مستحق نہیں ہیں وہ بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ مظلوم ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارے خاتمے وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین و رب العالمین۔